Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before I start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars on the go. And on that note, these are our top stories. Deepika and Ranveer groove to a new song from the film Gehraiyan. Will Farhan Akhtar and Shibani Dandekar's wedding celebration take place in Mauritius? Aditya Pancholi accused of assaulting a film producer. Ananya gate crashes Varun Dhawan's live session to promote Gehraiyan. गहराइयां के नए गाने पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण झूम रहे बेकाबू होके. Deepika, Ananya, Siddhant और धैर्य were spotted at a star-studded premiere of the film. जहां कई सेलिब्रिटीज ये मच अवेटेड फिल्म देखने आए. Deepika's last release as the main lead was Chhapaak in early 2020. 83 में उन्होंने एक कैमियो अपीयरेंस किया as रोमी देव and almost 2 साल बाद गहराइयां में she is back as the main lead, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे an ensemble cast of सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे and धैर्य कारवा. दीपिका के सारे फैंस उन्हें ऑन स्क्रीन देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन उनके सबसे बड़े फैन यानी कि उनके हस्बैंड रणवीर सिंह सबसे ज्यादा खुश है. Here's the story. रणवीर सिंह सेट कर रहे नए गोल्स फॉर बीइंग द परफेक्ट पति. The superstar shared a special video with wife and superstar Deepika Padukone from their car. दीपवीर गहराइयां के गाने बेकाबू पे ग्रूव करते हुए नजर आए. रणवीर ने दीपिका के साथ ये प्यारा सा वीडियो शेयर करते हुए लिखा, All the cool kids are doing it. दीपिका ने अपने पति को थैंक यू करते हुए एक प्यार भरा कमेंट शेयर किया. She said, My biggest cheerleader, I love you. इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्लियर दैट इवनिंग दीपिका ने भी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया where she was seen grooving to the same song with Ananya Pandey, Siddhant Chaturvedi and धैर्य कारवा. दीपिका shared almost a 2-minute long video जहां सभी कास्ट मेंबर्स पूरे जोश के साथ बेकाबू के लिरिक्स गा रहे थे और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस भी दे रहे थे. Looks like the actors and makers are sparing no efforts to make sure the film is a huge success. दीपिका ने अपने वीडियो को कैप्शन किया, That's how we roll. लगता है चारों एक्टर्स फिल्म के प्रीमियर के लिए एक साथ जा रहे थे and they made a fabulous appearance on the red carpet. Deepika chose a black and neon green outfit while Ananya wore a black and white skirt and black crop top. Siddhant and Dhairya looked dapper in jackets and trousers and they kept their look more casual compared to the ladies who were decked out from head to toe. कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज गहराइयां के प्रीमियर पे दिखाई दिए. कपिल शर्मा was spotted with his wife Ginny and the comedian was spotted planting an adorable kiss on his wife's cheek. कपिल के अलावा सानिया मल्होत्रा, तायरा कश्यप, सोनाक्षी जैसे कई सेलिब्रिटीज गहराइयां के प्रीमियर पे दिखाई दिए. गहराइयां 11 फरवरी को एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी. Here's wishing the entire team all the very best for the film and we hope कि audiences को ये फिल्म पसंद आए. क्या फरहान अख्तर और शिबानी डांडेकर मॉरिशस में कहेंगे I do? That's right, फरहान और शिबानी बनने जा रहे हैं husband और wife. And from what we hear, it's going to be a grand celebration spread across 3 cities. Farhan Akhtar और शिबानी Dandekar have been in a steady relationship for a while now, and this talented couple often sets relationship goals with their posts. शिबानी एक एंकर, सिंगर और एक्टर हैं, while फरहान बॉलीवुड के सबसे मल्टी-फैसेटेड आर्टिस्ट में से एक है, being a producer, director, actor, singer and writer.
After 4 years of being in love, Farhan and Shibani are finally ready to live together and say happily ever after. फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी खुद फरहान के पापा वेटरन लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने कंफर्म की थी। जावेद साहब ने बताया था कि फरहान और शिबानी मुंबई में अपनी शादी रजिस्टर करेंगे, जिसके बाद द कपल विल हैव अ वेडिंग सेरेमनी एट जावेद साहब एंड शबाना आजमीज फार्म हाउस इन खंडाला। कंफर्मिंग द हैप्पी न्यूज, जावेद साहब ने कहा था कि शादी 21 फरवरी को हो रही है, लेकिन शादी की सारी डिटेल्स वेडिंग प्लानर संभाल रहे हैं। He added, taking the situation into consideration, it is obvious that we cannot host anything on a large scale, so we are only calling a few people. Speaking about Shibani, जावेद साहब said कि उन्हें फरहान की होने वाली बेगम बहुत पसंद है। शिबानी को फैमिली में वेलकम करते हुए जावेद साहब ने कहा, She is a very nice girl. All of us like her very much. The most important thing is that Farhan and she get along very well, which is great. लेकिन ग्रेपवाइन की माने तो फरहान और शिबानी एक 3-city celebration प्लान कर रहे हैं। So after Mumbai and Khandala, the couple may also continue wedding festivities in Mauritius. सारे डिटेल्स फाइनलाइज हो रहे हैं एंड होपफुली वी विल बी एबल टू स्पिल ऑल द बीन्स सून। इन द मीनवाइल, फरहान और शिबानी सेट कर रहे हैं मेजर कपल गोल्स विद देयर सोशल मीडिया पोस्ट्स। रिसेंटली फरहान ने शिबानी का एक फोटो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करते हुए लिखा, फॉरएवर co-traveler शिबानी दांडेकर. Looks like the couple were off on holiday somewhere or taking a long drive in their car. जहां कई लोग ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, सबसे स्वीट कमेंट आया शिबानी का, who responded to her beau with saying, "My forever fave in everything." Farhan and Shibani, you guys are adorable, and we can't wait to see the two of you as bride and groom. आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली फिर फंसे हैं एक नई कंट्रोवर्सी में। आदित्य पे लगा है एक प्रोड्यूसर को असॉल्ट करने का चार्ज, तो वहीं आदित्य ने लगाया उसी प्रोड्यूसर पे उन्हें वर्बली अब्यूज करने का चार्ज। सूरज पंचोली का करियर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। जिया खान के डिमाइस से जुड़ा केस वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं और अब उनके पापा आदित्य पंचोली की वजह से इट लुक्स लाइक सूरज फिर एक कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं। तो क्या अब सलमान खान उनके गॉडफादर बनके उन्हें बचा लेंगे? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सूरज पंचोली के पूरे एक्टिंग करियर में इतना ड्रामा नहीं होगा जितना उनकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी में है। द स्टार किड हैज बीन एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सीज एंड लीगल बैटल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर और लगता है ये प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाले। सूरज को फिल्म दिलवाने की कोशिश में उनके पापा आदित्य पंचोली अब एक और लीगल बैटल और पुलिस केस में फंस गए हैं। प्रोड्यूसर सैम फर्नांडिस ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस केस फाइल किया है और उन पे धमकी देने का और असॉल्ट का इल्जाम लगाया है। रिपोर्टेडली जनवरी 27 को एक होटल के बाहर सैम और आदित्य पंचोली के बीच झगड़ा हुआ। सैम ने तुरंत पुलिस केस फाइल की और उसके अगले दिन ही आदित्य ने भी सैम के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें ही अक्यूज्ड हिम ऑफ अब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग हिम। सैम के कंप्लेंट के मुताबिक वो सूरज के साथ फिल्म बना रहे थे, लेकिन पैंडेमिक में फंड्स की कमी की वजह से वो मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाए। He alleges कि ये प्रॉब्लम उन्होंने आदित्य को बताने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उन पे हाथ उठाया और उन्हें धमकाया। आदित्य का एक्यूजेशन है कि सैम ने उनसे सूरज के साथ फिल्म बनाने के लिए पैसे लिए थे। फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन बार बार पूछने पर भी सैम अलेजिडली उनके पैसे नहीं लौटा रहे थे। सैम ने रिपोर्टेडली आदित्य को वर्बली अब्यूज किया और पैसे लौटाने से मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस कंट्रोवर्सी का डायरेक्ट असर फिर सूरज के करियर पे पड़ेगा। सूरज मेड हिज डेब्यू विद हीरो, जिसे सलमान खान ने प्रेजेंट किया था।
और अब शायद सलमान ही सूरज को बचा लेंगे। सुनने में आ रहा है कि अब बॉलीवुड के भाईजान सूरज के करियर को एक और मौका देने वाले हैं विद द हिंदी रीमेक ऑफ लव मॉकटेल, अ कन्नड़ा फिल्म। इस हिंदी रीमेक का टाइटल रिपोर्टेडली बारिश होगा और इसमें सूरज के साथ एक या दो नहीं 3 लीडिंग लेडीज होंगी। इनमें से एक रिपोर्टेडली सलमान खान की लॉयलिस्ट जैकलीन फर्नांडिस है, हु विल प्ले वन ऑफ सूरज's लव इंटरेस्ट्स। जिसके सर पे सलमान खान का हाथ हो, उनके करियर का सूरज इतनी जल्दी नहीं डूब सकता। हियर्स होपिंग कि अब सूरज कंट्रोवर्सी नहीं, काम पे ध्यान दे और अपने करियर का पहला सक्सेस एंजॉय करे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, आनंद एल राय या संजय लीला भंसाली, कौन बनाएगा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की लाइफ स्टोरी पे बायोपिक? लता मंगेशकर जी सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाई और अपना करियर शुरू किया। कई दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड की सैकड़ों लीडिंग लेडीज के लिए प्लेबैक सिंगिंग किया और देश की बदलती छवि के बीच अपने मधुर आवाज से हमें जोड़े रखा। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब एक या दो नहीं 3 फिल्म मेकर्स उनकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं। आनंद एल राय, राकेश ओम प्रकाश मेहरा एंड संजय लीला भंसाली आर ऑल vying to make a biopic on the historic life of लता मंगेशकर जी। रिपोर्टेडली भंसाली साहब पिछले 10 सालों से इस आइडिया के साथ जी रहे हैं, बट लता जी की फैमिली उनकी विशेस का मान रखते हुए कोई भी ऑफिशियल बायोपिक अलाउड नहीं करने वाले हैं। लता जी का सफर वाकई लाखों में एक है, लेकिन शी डिडंट वांट एनी फिल्म टू बी मेड ऑन हर और उनकी फैमिली इस इच्छा का मान रखते हुए ऑफिशियल बायोपिक्स अलाउड नहीं करेंगे। While she was still alive, many filmmakers wanted to create a movie or web series to chronicle her extraordinary life. लेकिन हर बार लता जी ने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी। सुनने में आ रहा है कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी उनकी कहानी पे वेब सीरीज बनानी चाहिए, लेकिन हर बार लता जी और उनकी फैमिली ने इनकार कर दिया। After a career spanning almost 5 decades, लता जी पिछले कुछ सालों से घर पे ही थी। She had stopped all public appearances and even singing for films. After testing positive for the pandemic-related virus, लता जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां unfortunately she passed away. लता जी की जिंदगी पे बायोपिक बने या ना बने, वो एक ऐसी हस्ती है जो हमारी यादों में हमेशा रहेगी। Are you swimming? Not as yet. I'll be doing some laps like you. I can do some extra laps for you. Please do. I miss Goa. I think Goa misses you as well. I think one day we must tell the story of how you came all the way. I was staying just to do laps and just to use my pool. I'm feeling tempted to do the same again. How long are you there for? I'm there for a week. Come. Should I come tomorrow? Come. Seriously, come. Should I just come swim in your pool again? Just come swim and then leave. Yeah, I think that's a good idea. वरुण धवन ने अपने फैंस के साथ कंडक्ट किया एक लाइव इंटरैक्शन, जहां उन्होंने दिया सारा अली खान को कुछ करियर एडवाइस और अनन्या पांडे की फिल्म गहराइयां को प्लग किया। Never play yourself on screen. No, I won't. My poetry is just for me and Instagram. And you, because you are the one. Varun Dhawan has been away from the big screen for quite some time now. The actor's last release was Coolie No. 1, जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। Unfortunately, फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले, लेकिन the good-looking star has completed work on 2 new films, भेड़िया and जुग जुग जियो, and it looks like दोनों ही बिग स्क्रीन्स पे जल्द ही रिलीज होंगी। Here's the story.
वरुण धवन का लास्ट रिलीज भले ही नंबर 1 ना हुई हो, the actor made headlines for marrying the love of his life, Natasha Dalal, in January last year. The couple, who keep their personal life low-key, just celebrated a year of togetherness. और इसी बीच वरुण ने भेड़िया और जुग जुग जियो की शूटिंग कंप्लीट भी की. The actor seems to be enjoying some time off and conducted a live session with his fans recently, जहां उन्हें ज्वाइन किया उनकी कूली नंबर 1 को-स्टार सारा अली खान ने. सारा और वरुण का मस्ती मजाक देख के फैंस बहुत खुश हुए एंड सारा इवन जोकिंगली सेड कि वो भी गोवा आ रही है टू हॉलिडे विद वरुण एंड स्विम इन हिज पूल. लेकिन बाय बोलने से पहले वरुण ने सारा को दिया कुछ इंपॉर्टेंट करियर एडवाइस. Varun praised Sara for her performance in Atrangi Re and said कि जब भी सारा ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करती हैं that are completely unlike her in real life, she does well. Sara had such a great month. She was so amazing in Atrangi Re, and she's going out there and just I think I always excel in like movies where you go opposite to the grain of the person that you are. I should not play myself, as you have said to me before. Never play yourself on screen. No, I won't. My poetry is just for me and Instagram, and you, because you are the one. वरुण ने सारा को एडवाइस किया, लेकिन सारा was not the only one who gate crashed Varun's live session. Ananya Pandey also joined in and was seen plugging in her film Gehraiyan in the comment section. अनन्या ने वरुण के सेशन में कमेंट करते हुए फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की, to which Varun said, Ananya, stop trying to plug in your film. Stop it. Don't do that. Don't get so deep, which means Gehraiyan in Hindi. वरुण ने अनन्या की खूब तारीफ भी की and said that he is excited to see the film, जिसे उनके अच्छे दोस्त शकुन बत्रा ने डायरेक्ट किया है. Here's hoping कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म जल्द ही रिलीज हो और आपके फैंस आपको थिएटर्स में देख पाएं. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Romance, झगड़े या फिर fashion faux pas, there's always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. Here are the top stories making headlines today. Take a look. दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और उनके पति खूब ट्रैवल करते हैं and the two love sharing pictures and videos from their holidays around the world. दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने एक नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है, जहां वो और उनके हस्बैंड विवेक दहिया समंदर किनारे goof around कर रहे हैं using a song from the upcoming film Gehraiyan. दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने उनके और विवेक दहिया के थोड़े रोमांटिक, थोड़े मस्ती भरे पल अपने फैंस के साथ शेयर किए. वीडियो शेयर करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने अपने कैप्शन में लिखा, If @Vivek Dahiya was in Mumbai, he wouldn't have let me post it. Taking advantage of the situation. Us on the beach. Barely romantic. Mostly idiotic. #Valentine's special. अपनी ड्रीमी शादी के बाद मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार अपने हनीमून के लिए गए हैं कश्मीर के विंटर वंडरलैंड में. शादी के बाद की सारी रस्में निभाने के बाद मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार कश्मीर के लिए निकल गए एंड मोनी रॉय हैज बीन शेयरिंग सम स्टनिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम द स्टनिंग स्नो-फिल्ड हिल्स ऑफ कश्मीर. मोनी रॉय ने शेयर की गर्मा गर्म मैगी की एक फोटो, एक ऐसा स्नैक जो हर कोई पहाड़ों में छुट्टियां मनाते वक्त खाते हैं. शी ऑल्सो शेयर्ड पिक्चर्स ऑफ हरसेल्फ इन विंटर वेयर एंजॉयिंग द स्नोफॉल एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स विद हर पतिदेव. डेली सोप अनुपमा में अनुज कपाड़िया और अनुपमा पे टूट पड़ा है दुखों का पहाड़. वनराज ने मालविका को मैनिपुलेट करके उसे अनुज कपाड़िया और अनुपमा के खिलाफ कर दिया है. अनुज कपाड़िया ने अपना प्यार और अपनी परवाह साबित करने के लिए अपना सब कुछ मालविका के नाम कर दिया है. जब वनराज अनुज कपाड़िया को टॉन्ट करता है कि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं, तो अनुज कपाड़िया कहता है कि अनुपमा को खो के वो वैसे भी अपना सब कुछ खो चुके हैं. अनुज कपाड़िया मालविका से कहता है कि वो रिजाइन करके सब कुछ मालविका के हवाले कर रहे हैं, लेकिन एज अ ब्रदर वो हमेशा उसकी केयर करेंगे. क्या मालविका वनराज की चाल समझ पाएगी या फिर उससे धोखा खाएगी? Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.